Hi everyone, my name is Ashwara Singh and welcome back to Education. I'm a UPSC Civil Services Examination educator and mentor for over 5 years now, and I've mentored hundreds and thousands of students and increased their probability of success in civil service examinations. Now it is your turn. Today in this video, I'm going to discuss about the historic judgment by the Supreme Court and the question of abrogation of Article 370. Is it constitutional or unconstitutional? And the 5-judge bench, including our Chief Justice of India, reached the following judgment. The verdict clearly stated that abrogation of Article 370 is not unconstitutional because it doesn't break any law of the land or it is not against any clause or provision of their constitution. Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. And what will UPSC ask from this particular topic? Why is it important for you to understand the history, the repercussions, the removal, and now the final verdict of the Supreme Court on the matter of Article 370? They will try to test your point of view and understanding of the same. So let's dive into the history of Article 370. On 26th October 1947, Instrument of Accession was signed between Government of India and Maharaja Hari Singh of Kashmir. Through this Instrument of Accession, Jammu and Kashmir became part of India. On 17th October 1949, Article 370 was incorporated in the Indian Constitution. अब इसको समझने की कोशिश कीजिए. 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा था. So, Article 370 was made a part of the Constitution even before it was completed. The completion of our Constitution in 1950, there are two important articles you have to see here. See, Article 1 is declaring Jammu and Kashmir as a state of India, whereas on the other side you have Article 370 giving a temporary status to Jammu and Kashmir. अगर कोई भी changes करने आपको 35A में या Article 370 में, it can be only done by the presidential order. So on 14th May 1954, Dr. Rajendra Prasad ji, the then president, passed the Constitution application to J&K order. इसमें Article 35A got included in the Constitution of Jammu and Kashmir. See, Article 35A is not a part of our constitution, that is the Indian constitution. So under Article 370, they were allowed to have their own constitution. And 35A करता क्या है? तो it prohibits other citizens, let's say, from buying any property in Jammu and Kashmir, or who can be a permanent resident of Jammu and Kashmir. उसके parameters को decide करता है. 1954 में Article 35A को include कर दिया J&K के constitution में. 17th November 1956 में Constitution of Jammu and Kashmir became applicable and it also declared, यानी उनके अपने संविधान ने भी ये declare किया that Jammu and Kashmir is the integral part of India. पिक्चर को थोड़ा fast forward करते हैं. 1947 से 1990 तक जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस को विटनेस किया गया. 1919 में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इम्पोज करना पड़ा जम्मू कश्मीर में बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन द वैली. 2015 में बीजेपी और पीडीपी ने एक अलायंस गवर्नमेंट बनाई जम्मू एंड कश्मीर में और हमें लगने लगा था कि अब जम्मू एंड कश्मीर की किस्मत बदलेगी. बदलाव की शुरुआत भी हुई. 2016 में महबूबा मुफ्ती जी को जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन सिर्फ 3 सालों में यह अलायंस टूट गया. और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर उनका आर्टिकल 92 अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर स्टेट की मशीनरी सही से स्टेबली रन नहीं करती है देन गवर्नर्स रूल विल टेक ओवर द स्टेट. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गई दैट दिसंबर 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना पड़ा. अब बात करते हैं मई 2019 की, जब भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जीता. जब भी कोई पार्टी एक इतना बड़ा जनरल इलेक्शन को जीतती है, वो भी इतने बहुमत से, तो उनके मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उनका बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी जीत में. और बीजेपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था रिमूवल ऑफ आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370. चलिए अब इन आर्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं. तो जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा 1947 से है through the Instrument of Accession which was signed between the Government of India and Raja Hari Singh ji. अब इस Instrument of Accession में लिखा गया था about the special provisions जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाए जाएंगे क्योंकि संविधान अभी बन ही रहा था.
अब स्पेशल स्टेटस या प्रोविजन का मतलब क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस स्पेशल स्टेटस, अदर लॉज जो बाकी के हमारे कंट्री में अप्लाई किए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे. कुछ स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लिए, और इस प्रोविजन में साफ साफ लिखा था कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन होगा, यानी इसे कभी भी हटाया जा सकता है. लेकिन एक डेडलॉक की वजह से इतने साल लग गए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एब्रोगेट करने में. जैसे आपने सुना था, चंद्रचूड़ जी ने भी एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट कहा था. अब ये रिमूवल जो है स्टेटस का, ये प्रेसिडेंट के पब्लिक ऑर्डर से किया जा सकता है. लेकिन बिफोर द प्रेसिडेंट इशूज दिस ऑर्डर, द प्रेसिडेंट हैज टू कंपल्सरली टेक परमिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में अबॉलिश कर दी गई थी. तो अब प्रेसिडेंट किससे परमिशन लेंगे? दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स ऑफ द डेडलॉक and the delay in the abrogation of Article 370. इतना वक्त क्यों लगा? इस प्रोविजन की वजह से लगा. सो अब ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 35A क्या है. सो आपने इनिशियली देखा है इसको कैसे जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया. उसमें एक प्रोविजन आपने पढ़ा होगा कि जो लॉ रेस्ट ऑफ द कंट्री में एप्लीकेबल है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है. तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक एक्सटेंशन भी दिया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली के साथ मिलकर डिसाइड करे तो जो लॉ एंटायर कंट्री में एप्लीकेबल है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई किया जा सकता है. जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है परमानेंट रेसिडेंट और नॉन परमानेंट रेसिडेंट के बीच के डिफरेंस का. सो परमानेंट रेसिडेंट्स को स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को नहीं दिए जाते हैं, और वो जो नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स होते हैं वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन या लिमिटेशन को फेस करते हैं स्टेट में. So who is a permanent resident of Jammu and Kashmir? ये पैरामीटर्स आर्टिकल 35A में mentioned है. So person who has been a state subject since 14th May 1954 will be a permanent resident. Or people who have lawfully acquired an immovable property are called permanent resident of Jammu and Kashmir. Or people residing in J&K for 10 years can be called permanent residents of Jammu and Kashmir. So now you know कि डिफरेंस भी है और एक फ़ायदा है परमानेंट रेसिडेंट होने का, एंड काफ़ी सारे लिमिटेशंस हैं नॉन परमानेंट रेसिडेंट होने के. बेसिक राइट जैसे राइट टू वोट भी नहीं दिया जाता है नॉन परमानेंट रेसिडेंट को. नाउ आर्टिकल 35A को जितना आपने समझा उसमें आपको एक डिस्क्रिमिनेटरी अंडरटोन ज़रूर समझ आएगा. एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आपको बताती हूँ कि अगर एक कश्मीरी वुमेन एक आउटसाइडर या नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को खो देती है एज पर आर्टिकल 35A. बट इन 2002 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्लैरिफाई किया दैट प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ कश्मीरी वुमेन अगर वो आउटसाइडर या नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो इंटैक्ट रहेगा वो प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन वो अपने बच्चों को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी. सो दिस वॉज द जजमेंट दैट केम आउट इन 2002. तो फाइनली जब एब्रोगेशन होता है तो गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आपके मेजर कंसर्न्स क्या थे इन आर्टिकल्स को लेकर, 370 और 35A को लेकर. तो उन्होंने कुछ कंसर्न्स को हाईलाइट किया, जिनमें से पहला कंसर्न था कि ये दोनों आर्टिकल्स जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के सबसे बड़े हर्डल्स हैं. जो बेसिक राइट्स भी नहीं दे रहे हैं नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, जॉब के सेक्टर में हो, तो इट वाज प्रिटी डिस्क्रिमिनेटरी, एंड उनका डेवलपमेंट भी एज अ स्टेट प्रॉपरली नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस टू आर्टिकल्स. एंड नंबर 2 was also the fact that these articles were discriminating against the minorities living in Jammu and Kashmir and also the Dalit community. So the state was not able to enjoy economic development or social development, and the biggest reason given was these two articles are the biggest hurdle in achieving national integration. So देश की एकता का सवाल था, और उस एकता में ये दोनों आर्टिकल्स किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे. प्रीवियसली मैंने आपको समझाया था डेडलॉक के बारे में, आपको याद ही होगा. उस समय ये लिखा गया था कि भाई अगर प्रेसिडेंट को इन दोनों आर्टिकल्स को रिमूव करना है तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर की. लेकिन पार्लियामेंट ने इस डेडलॉक का सल्यूशन निकाला 5 अगस्त 2019 को, जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपने पावर को इस्तेमाल किया ऑन आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया. उस ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019.
इस ऑर्डर में क्लियर शब्दों में लिखा था that this order will replace the order of 1954 with immediate effect. यानी आर्टिकल 35A and Constitution of Jammu and Kashmir cease to exist or no longer continue. इस नए बदलाव को लागू करने के लिए होम मिनिस्टर ने 2 रिजोल्यूशंस बताए। पहला था आर्टिकल 370 शुड बी मेड इनऑपरेटिव बिकॉज ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटरी नेचर एंड दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास करवाना। अब इन क्लॉजेस को कैसे लागू किया गया? पहला जो क्लॉज था वो था आर्टिकल 370 को इमीडिएटली इनऑपरेटिव करना। उसके लिए क्लॉज 4 को ऐड किया गया आर्टिकल 367 में। अब आर्टिकल 367 क्या है? ये आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन है। आर्टिकल 367 सब क्लॉज 4 में ये बताया गया कि जो टर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 में यूज किया गया है, अब से उसका मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जब चट्टान जितना बड़ा डेडलॉक हटा दिया गया था, तो अब बारी थी रेजोल्यूशन सेकंड यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास करवाने की, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। पहला सेक्शन नंबर 3 जिसमें ये लिखा गया है कि एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी बाय कंप्राइजिंग द रीजन ऑफ लद्दाख, कारगिल एंड लेह, बट इट विल नॉट हैव अ लेजिस्लेचर। एंड सेक्शन 4 में लिखा गया अ न्यू यूटी यूनियन टेरिटरी नेम जम्मू एंड कश्मीर शैल बी made with a legislature. So now what is the impact of this removal of Article 370 and 35A? So पहले special powers दिए गए थे, अब कोई special powers जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। Initially dual citizenship था, अब single citizenship है। उनका एक separate flag था, अब tricolor will be the only flag. No reservation for minorities were given before, now minorities will be given reservation. माइनॉरिटीज़ के लिए जो रिजर्वेशन प्रोविजंस है वो अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे। फर्दर देयर वर फ्यू मोर इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वी सॉ। आर्टिकल 356 और 360 इनिशियली वर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर बट नाउ आर एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, अब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश का। विमेन मैरिंग आउटसाइडर वर लूजिंग द प्रॉपर्टी, अब ऐसा नहीं होगा। एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री initially could not settle in Jammu and Kashmir. अब ये prohibition हटा दिया गया है। That is it for the video. Thank you so much for watching and I hope now you understand just how important integrity of our country is. I'll see you in the next one. और इस session का जो PDF है, ये जो content है, ये आपको हमारे Telegram channel पे मिलेगा जिसका link हमेशा description box में होता है। I'll see you in the next one.